বিৰুদ্ধে ভয়ংকৰ ৰাজনৈতিক এজেণ্ডা। এনেদৰে সদনৰ মজিয়াত গৰজি উঠিলে কংগ্ৰেছী সাংসদ। আমি দৃশ্যাংশটো দেখুৱাইছো। এনেদৰে সদনৰ মজিয়াতে গৰজি উঠা পৰিলক্ষিত হৈছে কংগ্ৰেছী সাংসদ ইমৰান প্ৰতাপগিৰি। মুছলমানক অন্ততঃ কবৰত শান্তিৰে শুবলৈ দিয়ক মোদী চৰকাৰে। মুছলমানৰ ঘৰ ভাঙি শান্তি নোপোৱা মোদী চৰকাৰৰ চকু এইবাৰ কবৰস্থানত। মুছলমানৰ পৰিচয় মোদী চৰকাৰে মচিব নোৱাৰে। এনেদৰে ৱাকফৰ বিৰুদ্ধে উদ্যাপ্ত ভাষণ কংগ্ৰেছ সাংসদ ইমৰান প্ৰতাপগিৰি। ৱাকফ বিল মুছলমানৰ বিৰুদ্ধে ভয়ংকৰ ৰাজনৈতিক এজেণ্ডা। এনেদৰে সদনৰ মজিয়াত গৰজি উঠিলে কংগ্ৰেছী সাংসদ ইমৰান প্ৰতাপগিৰিয়ে। মুছলমানসকল দেশৰ নাগৰিক নহয় নেকি? আমাৰ ঘৰেই নহয়, আমাৰ কবৰস্থানো উচ্ছেদ কৰিছে এইখন চৰকাৰে। ৰাজ্যসভাত এনেদৰে গৰজি উঠিলে কংগ্ৰেছী সাংসদ। মুছলমানক অন্ততঃ কবৰত শান্তিৰে শুবলৈ দিয়ক। এতিয়া বিজেপিয়ে কৈছে তেওঁলোকে মুছলমান মহিলাক ন্যায় দিব। ৰাজ্যসভাৰ কংগ্ৰেছ সাংসদ ইমৰান প্ৰতাপগিৰিয়ে সদনৰ মজিয়াত উদ্যাপ্ত ভাষণ, কেইবাটাও বিস্ফোৰক মন্তব্য প্ৰকাশ কৰিলে। তেখেতে ক'লে যে আমাৰ ওপৰত কিয় বাৰম্বাৰ বুলডোজাৰ চলাইছে চৰকাৰে। মুছলমান সমাজৰ ওপৰত কিয় বাৰে বাৰে বুলডোজাৰ চলাইছে এইখন বিজেপি চৰকাৰে। আমাৰ পূৰ্বপুৰুষে ধাৰ্মিক কামৰ বাবে ৱাকফৰ সম্পত্তি দান কৰিছিলে। ৱাকফ সংশোধনী বিলৰ বিৰুদ্ধে কংগ্ৰেছ সাংসদ ইমৰান প্ৰতাপগিৰিৰ গৰ্জন। আৰু এনেদৰে কেইবাটাও বিস্ফোৰক মন্তব্য কৰিলে কংগ্ৰেছী সাংসদগৰাকীয়ে। যিহেতু শেহতীয়াকৈ লোকসভাৰ লগতে ৰাজ্যসভাতো গৃহীত হৈছে ৱাকফ সংশোধনী বিধেয়কখন, আৰু তাৰ পাছতেই যিহেতু বিভিন্নজনে প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিছে, বিৰোধীয়ে প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিছে, মুছলমান সমাজে তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে, ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰিছে, আৰু তাৰ মাজতে এনেদৰে সদনৰ মজিয়াত ৱাকফৰ বিৰুদ্ধে উত্তপ্ত ভাষণ দিলে। গৰ্জন শুনিবলৈ পোৱা গ'ল কংগ্ৰেছ সাংসদ ইমৰান প্ৰতাপগিৰিৰ। ৱাকফ বিল মুছলমানৰ বিৰুদ্ধে ভয়ংকৰ ৰাজনৈতিক এজেণ্ডা বুলি উল্লেখ কৰিলে সাংসদগৰাকীয়ে। লগতে মুছলমানসকল দেশৰ নাগৰিক নহয় বুলি প্ৰশ্ন কৰিলে। আমাৰ ঘৰেই নহয়, আমাৰ কবৰস্থানো উচ্ছেদ কৰিছে এইখন বিজেপি চৰকাৰে। ৰাজ্যসভাত গৰজি উঠিলে এনেদৰে কংগ্ৰেছ সাংসদগৰাকী। মুছলমানক অন্ততঃ কবৰত শান্তিৰে শুবলৈ দিয়ক। এতিয়া বিজেপিয়ে কৈছে যে তেওঁলোকে মুছলমান মহিলাক ন্যায় দিব। ৰাজ্যসভাৰ কংগ্ৰেছ সাংসদ ইমৰান প্ৰতাপগিৰিৰ উদ্যত ভাষণ। আমাৰ ওপৰত কিয় বাৰম্বাৰ বুলডোজাৰ চলাইছে চৰকাৰে। মুছলমান সমাজৰ ওপৰত কিয় বাৰম্বাৰ বুলডোজাৰ চলাইছে চৰকাৰখনে। এই দেশ আমাৰো হয়, আমাক শান্তিৰে থাকিবলৈ দিয়ক। এই সম্পত্তি আমাৰ, ইয়াত অন্য লোকৰ হস্তক্ষেপ নচলিব। ভাৰত ৰত্ন মৌলানা আবুল কালাম আজাদ আৰু প্ৰাক্তন ৰাষ্ট্ৰপতি ফখৰুদ্দিন আলী আহমেদৰ প্ৰসংগৰে এনেদৰে প্ৰতাপগিৰিৰ মন্তব্য। আমাৰ পূৰ্বপুৰুষসকলে ধাৰ্মিক কামৰ বাবেহে ৱাকফৰ সম্পত্তি দান কৰিছিলে। ৱাকফ সংশোধনী বিলৰ বিৰুদ্ধে এনেদৰে সদনৰ মজিয়াত কংগ্ৰেছ সাংসদ ইমৰান প্ৰতাপগিৰিৰ কেইবাটাও বিস্ফোৰণ শুনিবলৈ পোৱা গ'ল। धन्यवाद सभापति महोदय। हम ही को कातिल कहेगी दुनिया, हमारा ही कत्लेआम होगा। हम ही कुएं खोदते फिरेंगे, हम ही पे पानी हराम होगा। सभापति महोदय, सन 1947 में दिल्ली की जामा मस्जिद की तारीखी सीढ़ियों पर खड़े होकर के भारत रत्न मौलाना अबुल कलाम आजाद साहब ने कहा था कि मुसलमानों कहां जा रहे हो, ये है तुम्हारा मुल्क, यहां तुम्हारे आबाओ अजदाद की कब्रें हैं। उस वक्त मौलाना आजाद की ये सदाएं सुन करके लोगों ने अपने सरों की गठरियां उतार करके रख दी थी। आज उसी दिल्ली में मौजूद देश की संसद में एक बिल आया है जो हमसे उसी जामा मस्जिद की सीढ़ियों के सबूत मांगेगा, जो उन्हीं सीढ़ियों के पास अपनी कब्र में सोए हुए मौलाना आजाद को फिर से कब्र से सदा देनी पड़ेगी कि ये जो कब्र है वो मेरी कब्र है, ये किसी सरकार की जागीर नहीं है। सभापति महोदय, मैं जहां खड़ा हूं इसी संसद भवन के सामने सड़क के उस पार अपनी कब्र में सोए हुए भारत के पूर्व राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद की कब्र है। शायद अब उस कब्र से भी सदाएं आए कि ये कब्र मेरी कब्र है, ये सरकार की जागीर नहीं है। सभापति महोदय, मैं वक्फ कानूनों में किए जा रहे संविधान विरोधी बदलावों के खिलाफ बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। संविधान का आर्टिकल 14 हो, 29 हो, 30 हो, चीख चीख कर कहता है कि देश में सब बराबर के हकदार। आर्टिकल 26 कहता है कि सबको अपने अपने मजहबी कामों के लिए मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारों का निर्माण करने का हक है और उसका रखरखाव का भी हक है। लेकिन डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के संविधान को हर दिन कुचलने वाली ये सरकार
देश के मुसलमानों से नफरत में इतनी अंधी हो गई है कि खुलेआम देश की संसद में देश सरकार के माइनॉरिटी मिनिस्टर साहब और होम मिनिस्टर साहब झूठ बोलते हैं और देश को गुमराह करते हैं, झूठ शब्द असत्य बोलते हैं। सरकार ने इस बिल का नाम उम्मीद रखा है। मंत्री जी कल से इसे देश के मुसलमानों के लिए नई उम्मीद बता रहे हैं। नहीं मंत्री जी, न तो यह बिल मुसलमानों के लिए नई उम्मीद है और न ही उम्मीद की नई किरण। सभापति महोदय, भाजपा ने पूरे देश में वक्फ के नाम पर कई सारे झूठ फैलाए हैं। आइए आज उनकी सच्चाई पर बात करते हैं। वक्फ ट्रिब्यूनल को संसदीय शब्द ऐसे बताया जाता है जैसे वक्फ ट्रिब्यूनल कोई मजहबी खाप पंचायत हो। सभापति महोदय, जबकि सच्चाई यह है कि वक्फ ट्रिब्यूनल भी तो सरकारी न्यायिक विभाग है जिसमें सरकार द्वारा नियुक्त जज होते हैं, जिसमें प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, कहीं ऊपर से थोड़ी आ गए। सभापति महोदय, देश के गृह मंत्री जी ने इसी सदन में कहा कि वक्फ ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ कोई कोर्ट नहीं जा सकता, जबकि सच यह है कि वक्फ एक्ट 1995 की धारा 83(9) के तहत हाई कोर्ट वक्फ ट्रिब्यूनल के फैसले की न सिर्फ समीक्षा कर सकता है बल्कि उसे बदल भी सकता है। सच तो यह है कि वक्फ बोर्ड खुद अपनी जमीनों के लिए कई सारी कोर्ट में मुकदमे लड़ रहा है। सभापति महोदय, दिल्ली की जिन 123 संपत्तियों को लेकर कल माइनॉरिटी मिनिस्टर, होम मिनिस्टर साहब और अभी आदरणीय नेता सदन बात कर रहे थे, आइए उनकी सच्चाइयों पे भी बात करते हैं। 1911 में जब अंग्रेजी हुकूमत ने कोलकाता के बजाय दिल्ली को राजधानी बनाने का फैसला किया तो रायसीना हिल्स के चारों तरफ जो मुसलमानों की ढेर सारी जमीनें थी उनको एक्वायर किया गया और लुटियन को इसकी तामीर की जिम्मेदारी सौंपी गई। सेंट्रल विस्टा की तरह लुटियन जोन का मेगा प्लान तैयार हुआ, लेकिन उस वक्त के मुसलमानों ने उस वक्त की अंग्रेजी हुकूमत से अपनी इबादत गाहों को बचाने के लिए लड़ाई लड़ी। मामला ब्रिटिश गवर्नमेंट तक पहुंचा। तब यह तय हुआ कि वो जो धार्मिक स्थल हैं उन्हें जस का तस रहने दिया जाएगा। इंडिया गेट के बगल वाली मस्जिद हो, जाप्तागंज, सुनहरी बाग मस्जिद हो, पार्लियामेंट रोड वाली मस्जिद हो, ऐसी 123 संपत्तियों के मैनेजमेंट के लिए 1913 में मुसलमान वक्फ वैलिडेशन एक्ट बना और उसके बाद एक नया शहर बसाया गया जिसे लुटियंस जोन का नाम दिया गया। फिर 1943-45 के बीच एक और समझौता हुआ आजादी से पहले, उसके तहत काफी सारी वक्फ जायदादों को सुन्नी मजलिस औकाफ बनाकर उसके अंडर किया गया ताकि उसकी देखरेख की जा सके। गृह मंत्री जी 2 दिन से सदन में जो बात कह रहे हैं वो दरअसल 123 संपत्तियां उसी सुन्नी मजलिस औकाफ के तहत आती। सभापति महोदय, भारत आजाद हुआ। आजादी के बाद भारत में 1954 में वक्फ एक्ट लागू हुआ, जिसकी धारा 9 के तहत 1964 में केंद्रीय वक्फ काउंसिल का गठन हुआ। दिल्ली की वही 123 प्रॉपर्टीज को 1970 में सर्वे गजट करके गजट नोटिफाई किया गया। इसके निपटारे के लिए पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा जी के द्वारा 1974 में एक बर्नी कमेटी बनाई गई। बर्नी कमेटी ने 1976 में इन 123 संपत्तियों को दिल्ली वक्फ बोर्ड की संपत्ति होने की रिपोर्ट सौंपी। उस रिपोर्ट के आधार पर 1984 में कांग्रेस सरकार ने उन 123 प्रॉपर्टीज को दिल्ली वक्फ बोर्ड को सौंपने का फैसला किया, जिसके खिलाफ विश्व हिंदू परिषद कोर्ट गई। मामला 2011 तक पेंडिंग रहा। फिर 2011 में कोर्ट ने सरकार को आदेशित किया कि इसका निपटारा करो। तब 2013 में तत्कालीन यूपीए सरकार ने दिल्ली की उन्हीं 123 जायदादों को बर्नी कमेटी की सिफारिशों के मुताबिक वक्फ बोर्ड के हवाले किया। यही वो प्रॉपर्टीज हैं जिनके नाम से गृहमंत्री जी कल से कांग्रेस को कोस रहे हैं। फिर आई 2014 में भाजपा की सरकार, जो तब से इन जमीनों को हड़पने की साजिश कर रही है। जिस बिल को मुसलमानों के हुकूक की हिफाजत करने वाला बिल बताया जा रहा है, उसी को पेश करने के लिए और उस पर बात करने के लिए
लोकसभा में भाजपा सरकार के पास एक भी मुस्लिम सांसद नहीं है। जिस वक्त, मैं लोकसभा कह रहा हूं, सुना करिए, जिस वक्फ बिल को मुस्लिम महिलाओं को हक दिलाने वाला बताया जा रहा है, उसे संसद में पेश करने वाली पार्टी के पास न तो राज्यसभा में, न लोकसभा में, न देश की किसी विधानसभा में एक भी मुस्लिम महिला सदस्य नहीं। कल किरण रिजिजू जी कह रहे थे कि रेलवे की जमीनें देश की जमीनें हैं, डिफेंस की जमीनें देश की जमीनें हैं। हां मंत्री जी हैं, बिल्कुल हैं। ये जो वक्फ की जमीनें हैं, ये हमारे पुरखों ने धार्मिक कामों के लिए डोनेट किया है। तो हम भी तो इसी देश के नागरिक हैं, हम भी तो इसी देश के बेटे हैं, तो वक्फ की जमीनें भी तो इसी देश की जमीनें हैं। उनको पराया क्यों बोलते हैं आप? सभापति महोदय अशफाकुल्लाह खान, কোনো খবৰৰ বাবে যোগাযোগ কৰক 7099017330 লগতে 7099017110 নম্বৰত।